Hello everyone and welcome back to my channel. This is Parts of Speech Part 3 and in this video we are going to study verb. Before starting, let me show you the answers of the previous video which I have given you as a homework. Starting with verb. A verb denotes action. A verb always has a subject. It tells several things about the subject. वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है अथवा जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ बताता है उसे क्रिया कहते हैं। A verb tells several things about the subject. It tells you what the subject does. What the subject does. सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। What state the subject is in. सब्जेक्ट किस अवस्था में है। What subject has. सब्जेक्ट के पास क्या है। What subject knows. सब्जेक्ट को क्या पता है। For example, if you see, Suman sings well. सुमन क्या कर रही है। Suman is singing. Suman is very happy. So, the verb tells the state of Suman that she is very happy. Suman has a blue dress. सुमन के पास क्या है, एक ब्लू ड्रेस है। सुमन कैन वर्क ऑन मोबाइल. सुमन को क्या करना आता है, मोबाइल पे काम करना आता है। इन सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सुमन है और वर्ब सिंग, इज, हैज और वर्क है। Coming on to the kinds of verb, there are two kinds of verb, main verb and auxiliary verb. In auxiliary verb, there are again two kinds, primary auxiliary and modal auxiliary. Main verb. A main verb can function by itself in a sentence. Main verb को किसी helping verb की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि She speaks Hindi, Ishita washed her clothes, जिसमें main verb है speaks and washed. The second is auxiliary verb. It is also called the helping verb, जैसे कि can, could, have, do, etc. अगर हम सेंटेंस देखें, he can dance, तो इसमें जो डांस है वो है हमारा मेन वर्ब और जो कैन है जो कि डांस को हेल्प कर रहा है अपना मीनिंग कंप्लीट करने में, ये है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन फंक्शन एज मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी डिड ऑल द वर्क, द वर्ब इज डिड and it is working as a main verb. But in the sentence, she has written a letter, has written. So here written is the main verb whereas has is a helping verb. So the primary auxiliary is functioning as a helping verb. Coming on to the modal auxiliary, ये सिर्फ और सिर्फ helping verb की तरह ही काम कर सकता है. That means it can function only as a helping verb. For example, can, could, would, should, she can dance, she can ride, she should go, etc. Now let us see कि primary auxiliary हम क्यों use करते हैं. That means what are the functions of primary auxiliary. First of all, shows tense of a verb. हमें पता चलता है इससे कि कौन से tense में है. Past tense, present tense, future tense, in which tense the sentence is. For example, if I say he was painting the fence, was painting shows us that this sentence is in past tense. ये sentence किसमें है, भूतकाल यानी कि past tense में है. Secondly, it shows habit, like और dislike. दिखाता है कि ये इनकी आदत है, इन्हें ये पसंद है या इन्हें ये नहीं पसंद है. For example, if I say, I don't sing Punjabi song, तो here the primary auxiliary is don't sing. That means मैं नहीं गाती हूँ, ये मेरा एक habit है. Okay? It shows negative and interrogative sentence. Negative और interrogative sentence को ये represent करता है. For example, if I say,
शी डज नॉट नो फ्रेंच, उसे फ्रेंच बोलना नहीं आता है. डज नॉट नो इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड दिस शोज दैट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. सेकेंडली इफ आई से हैव यू बीन टू द डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी हमें बताता है कि ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड है या फिर ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. फॉर क्वेश्चन टैग, फॉर क्वेश्चन टैग मीन्स जैसे कि आप बोलते हैं तुम वहाँ गए थे, नहीं गए थे, क्या हैवंट यू, आरंट यू, these things are question tag. For example, if I say you are going to school, aren't you, तुम स्कूल जा रहे हो, okay, it is used to represent the question tag aren't you, haven't you, whatever you say. अब आ जाते हैं रेगुलर वर्ब पे और इरेगुलर वर्ब पे. तो इन रेगुलर वर्ब जो भी हमारा बेस फॉर्म होता है, मतलब कि ऐसे वर्ड जिनके बेस फॉर्म में एंडिंग में सिंपली ईडी या डी लगा के उनको हम सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. और मेजॉरिटी ऑफ वर्ब जो होते हैं वो रेगुलर ही होते हैं. सच एज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल आस्क, तो आस्क को अगर हमको पास्ट में चेंज करना है तो सिंपली हम आस्क कर देंगे, ईडी लगा देंगे. तो ये हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब है. इररेगुलर वर्ब, इनकी एंडिंग जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है अपने बेस फॉर्म से. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक स्विम, तो अगर हमको इसमें सिंपल पास्ट में अगर इसको चेंज करना है तो ये हो जाएगा स्वैम, SWAM, SWIM से SWAM. पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो ये हो जाएगा स्वम, SWUM. तो इनकी एंडिंग जो होती है वो टोटली डिफरेंट हो गई. तो ये है इरेगुलर वर्ब. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब. तो स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होते हैं जो अपना पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, उनके वर्बल जो है प्रेजेंट टेंस में उसे चेंज करके वो पास्ट टेंस में बदल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक स्पीक, SPEAK, स्पीक, नाउ हियर इज E, राइट, एंड इन द पास्ट टेंस इट बिकम्स O. तो वोवल चेंज हो गया, प्रेजेंट टेंस में E था वोवल, पास्ट टेंस में O हो गया. सो फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग वोवल इन द प्रेजेंट टेंस. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, फाइट, here FIGHT, the vowel is I, whereas in the past tense the vowel changes to O, FOUGHT. Weak verb form their past tense by adding T, D और ED to base form. कोई भी बेस फॉर्म में अगर हम उसमें T ऐड कर दें, D ऐड कर दें या ED ऐड कर दें, यानी कि इसमें वोवल चेंज नहीं करना पड़ता है, तो ऐसे वर्ब को हम लोग वीक वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कीप, KEEP, पास्ट टेंस में KEPT, तो यहाँ पे P T में बदल गया. TELL, टेल, TOLD, टोल्ड, तो यहाँ पे L की जगह हमने D ऐड कर दिया. CALL, कॉल, CALLED, कॉल, तो हमने यहाँ पे ED ऐड कर दिया. तो ये होते हैं कुछ वीक वर्ब के एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टेंस ऑफ वर्ब. तो सबको पता है 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो पास्ट में होता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंपल फ्यूचर. देन पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट में 3 बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में है कि नहीं. सबसे फर्स्ट है एक्शन इज कम्प्लीटेड इन द पास्ट. जो भी कोई एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट में, भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल वी प्लेड चेस इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह चेस खेल चुके हैं. सेकेंडली एक्शन इज डन ऑन रेगुलर बेसिस इन अ पास्ट, मतलब कि पहले जो भी एक्शन था वो एक रेगुलर बेसिस पे होता रहता था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड चेस एवरी इवनिंग, मैं पहले हर शाम को चेस खेलता था. या फिर एक्शन एक हैबिट बन जाती है, ठीक है, यानी कि एक आदत बन जाती है. आई प्लेड चेस वेन एवर आई यूज टू बी बोर्ड, मैं कब चेस खेलता था, जब मैं बोर होता था तो मैं चेस खेलता था. तो एक्शन एक हैबिट बन चुकी है, एक्शन एक हैबिट बन चुकी थी. सो कमिंग ऑन टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर द प्रेजेंट मूवमेंट, मतलब कि अभी इस समय वो काम हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई प्रे बिफोर गोइंग टू स्कूल,
मैं रोज सुबह स्कूल जाने से पहले प्रार्थना करती हूँ. मैं प्रार्थना करती थी नहीं, मैं अभी भी प्रार्थना करती हूँ. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. सेकेंडली, फॉर एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली, मतलब कोई कि ऐसा काम जो ऑन द रेगुलर बेसिस होता रहता है, रोज होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करती हूँ. टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट और परमानेंट ट्रुथ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटी, किसी की नेचुरल क्वालिटी बताना, जैसे कि द बॉयज लव रफ गेम्स. ओके. सिंपल फ्यूचर, एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, अभी वो एक्शन हुआ नहीं है, हो भी नहीं रहा है, होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू शॉप टुमारो, हम कल शॉप पे जाएंगे, अभी तक हम गए नहीं है ना, हम जा चुके हैं, तो कल हमको जाना है, तो ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है, जो अभी हम काम कर रहे हैं वो अभी तक हमारा काम खत्म नहीं होता है, अभी चल ही रहा होता है. सो द एक्शन इज हैपनिंग करेंटली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, अभी मेरा पढ़ाना खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ. कमिंग ऑन टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम उस चीज़ की बातें करते हैं जो अभी तुरंत कुछ देर पहले ही हुई होती है. Talking of an action which was repeated frequently in the past. For example, I was distributing candy. मैंने भी कुछ देर पहले कैंडी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो I was distributing candy is a past continuous. Now coming on to the future continuous, ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो अभी फ्यूचर में होने वाला है और कुछ टाइम के लिए होते रहेगा, चलेगा वो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग हिस्ट्री, तो मैं ऐसा तो है नहीं मैं जाऊँगी तुरंत हिस्ट्री पढ़ूंगी और चली आऊँगी, तो मैं कुछ देर तक पढ़ूंगी हिस्ट्री, राइट. तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, मैं जाऊंगी कुछ देर तक पढ़ूंगी और फिर वापस आऊंगी, व्हाटएवर. ओके, नाउ द परफेक्ट टेंस. नंबर 1 इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है प्लस द पार्टिसिपल लगता है और एक्शन अभी प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ रहता है तुरंत. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन होमवर्क. पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हैड लगता है प्लस पार्टिसिपल लगता है और एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट. पास्ट में मतलब भूतकाल में पहले ही हो चुका है. I had done homework. फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे will have लगता है और पार्टिसिपल लगता है. एक्शन इज कम्प्लीटेड इन द फ्यूचर, एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा. I will have done the homework. Okay, now starting with perfect continuous tense. So number 1 is present perfect continuous. Action has started in the past and has to continue up to the present movement. मतलब कोई भी एक्शन था जो कि पास्ट में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और अभी तक वो चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब 1 घंटे पहले फुटबॉल खेलना शुरू किए थे और अभी तक खेल रहे हैं. सेकेंड इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इट एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शन इन पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. मतलब कि ये पास्ट में उस एक्शन को दिखाते हैं, उस काम को दिखाता है जो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चला, ठीक है, और उसके बाद एक और एक्शन पास्ट में ही हुआ, मतलब एक और काम हुआ पास्ट में ही. फॉर एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM. राम ने मेरा वेट करना स्टार्ट किया कब? 9 AM पे स्टार्ट किया और मैं वहाँ पहुँचा 11 AM पे. तो यहाँ पे दूसरा एक्शन यहाँ पे हो गया पास्ट में, ठीक है, पर ये जो पहला वाला एक्शन है वो काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए चला, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए चला. थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. शोज दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप टू अ पर्टिकुलर टाइम. दिखाता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा जो किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, इतने टाइम के लिए आपको वो काम फ्यूचर में करना है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर 5 मिनट, लाइक यू विल बी रनिंग फॉर 5 मिनट. तुम 5 मिनट तक भागोगे, फ्यूचर में भागोगे, कब तक भागोगे? 5 मिनट तक. Okay, so this will come under future perfect continuous. Thank you everyone for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. Thank you.